please. Our Chief Guest, Zonal Education Officer Ma'am, our special guest, Mr. Sabir Hussain Sir, and our Headmaster, dear colleagues, students, and dear parents, Assalamu Alaikum. On behalf of our school, I would like to welcome you all. Never falling. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. So, today is a day of celebration, achievement and pride. A day when hard work meets success and effort blossom into accomplishment. And without wasting your precious time, first of all, I would like to invite Ma'am Kanis on the dais for welcome speech. Miss Gladys Bano, Zonal Education Officer Kargil. Special guest, Mr. Sabir Hussain, Coordinator Samakra. VC Chairman Abbas Sir. Respected Headmaster, VCs, respected teachers, proud parents, and Teachers' Day. Today, we are here to celebrate the culmination of the year of hard work, dedication, and unwavering support to individuals and for parents and guardians and guests. Thanks and accomplishment. We are very delighted to have you here to share in this celebration. Today is not just about the result. For those who may not have achieved their desired results, remember that failures are often stepping stones. Embrace them learning experiences and move forward with a positive outlook. Especially guests, thanks a lot. I'd like to warmly welcome our guests. So I would like to request our Headmaster, please welcome our guests with traditional khatak. चला गया धरती पे आसमान
From class second, third position goes to Rihana Batul with 96.6%. Well done, very good. इनके लिए ताली बजाइए आप लोग प्लीज, इनकी मेहनत की वजह से आज आपको मिल रहा है. Class third position goes to Sakina Begum with 93.6%. From class 4, third position goes to Fatima Zahra with 90.16%. Fatima Zahra from class 4, third position. Yasin Fatima, parents Yasin Fatima parents का कोई है? इफ्तिकार अस्करी भी 96.8%. इफ्तिकार अस्करी पेरेंट्स है तो साथ में आ सकते हैं पेरेंट्स. थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच. इंकरेजमेंट मिलता है और आपके स्टूडेंट्स को भी इंकरेजमेंट मिलता है. तो इसके बाद जो है आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर बीसी मेंबर प्लीज come on the dais and present their point of view. Bismillahirrahmanirrahim. Shabir sir, the headmaster of Model High School, Bethan Sharif se, Haji Gulzar Sahib, head of the Village Education Committee, Janab Ghulam Abbas Munshi, और पेरेंट्स, साथ ही साथ हमारे रेस्पेक्टेड टीचर, हमारे अदर मेंबर ऑफ विलेज एजुकेशन कमेटी एंड डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हम सब आज यहाँ एक साल की अपने बच्चों की मेहनत की जो नताइज है उसे सुनने के लिए और साल की एनुअल फंक्शन को ज्वाइन करने के लिए यहाँ हम सब जमा हुए हैं, जिसके लिए मैं एज ए मेंबर ऑफ विलेज एजुकेशन कमेटी आप तमाम लोगों को इस महफिल में खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं. साथ ही साथ स्कूल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए एक फ्यूचर रिक्वायरमेंट तक में आता हूँ. 2016 के बाद ऐसे प्राइमरी स्कूल एडप्ट करने के बाद स्कूल ने एक बहुत ही स्पीडी ग्रोथ दिखाया है. जस्ट 2 साल बाद एक अच्छी इनरोलमेंट के साथ हमने ऐसे मिडिल स्कूल इस स्कूल को अपग्रेड होते समग्र के अंदर देखा है. और साथ ही साथ बड़ी खुशी के साथ आप सबको अनाउंस भी करते हैं, शायद पता भी होगा कि इस साल अल्लाह की फजल व करम और हमारे डिपार्टमेंट की मेहनत और मशक्क़त, आप पेरेंट्स साहिबान के दुआ और बरकत के नताइज हमारे स्कूल एक हाई स्कूल की कैटेगरीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं और हम अपग्रेड हो चुके हैं. और बड़ी ही खुश खबरी के साथ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस साल पिछले साल की तरह 8वीं जमात पास करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए हमें नियरेस्ट
کسی ہائی اسکول کو اپروچ کرنا پڑتا تھا، بوائز ہائر سیکنڈریز کو اپروچ کرنے پڑتے تھے. اور انشاءاللہ آج کے بعد ہمیں یہ چیز کے سامنا ہمیں کرنا نہیں پڑیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے بچوں کو 10th کلاس تک ہم اپنے اسی اسکول میں ان کا تعلیم جو ہے انتظام کر سکتے ہیں. ایک اچھی کوارڈینیشن کا نتیجہ ہے. میں اپنے گیسٹ صاحبان کو بھی یہ چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک ٹرائنگولر ایک اسٹرانگ بانڈ یہاں پہ ضرور پچھلے 10 سالوں سے دیکھنے کو ملا ہے. ڈپارٹمنٹ کا اسکول ایڈمنسٹریشن کا ایک یہاں پہ ایک مضبوط ایک کوارڈینیشن یہاں دیکھنے کو ملا ہے، جس کا صلہ ہمیں ایک لداخ میں ہائیسٹ گروتھ ان ٹرمز آف رول ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، جو کہ ایک 200 کو ٹچ کرنے والا ایک سنگل میڈم اسکول میں گنا جاتا ہے، جس کی جنوین کو دیکھ کے میڈم سیکریٹری بھانو پربھا کی طرف سے ایک دم ہاں اس اسکول کے لیے ہائی اسکول ایسے ہائی اسکول اپگریڈیشن میں کیا گیا ہے. تو اس ڈائس کی وساطت سے میں میڈم صاحبہ اور فارمر گورنر صاحب کا بھی میں تہہ دل شکریہ کرتا ہوں اپنے گاؤں والوں کی طرف سے کہ اس اسکول کو ایک فوری طور پر ہائی اسکول بنانے میں ان کا بہت بڑا سہیوگ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا بھی جنہوں نے ہر قدم پر ہر لمحے میں ہمارے جنوین ڈیمانڈ کو سنتے ہوئے ان بچوں کی یعنی کہ ڈیمانڈ کو پورے کرنے کی کوشش کی ہے. اگر میں اس سال کی اچیومنٹ کی بات کروں تو اس سال ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بہت اچھی کام کیا ہے، جن کا ایک انڈر کنسٹرکشن جو منظر جو ہے آپ اس پردے کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، جو کہ کیپیکس 2024 کے اندر یہاں پہ ہمارے 3 کلاس روم اور ایک ہال کا یہاں پہ نرمان ہوا ہے، جو کہ بس اگلے سال میں 9th کلاس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ اس سال سماگرا کے اندر ہمیں 2 ایڈیشنل کلاس روم ملا ہے، جو اسی بلڈنگ کی جی بغل والی سائڈ میں ذریعہ میم آپ دیکھ سکتے ہیں. کوآرڈینیٹر اس سے بھی ہمارا کمرہ یہاں پہ بالکل تیار ہے، جو سروسنگ کے لیے بالکل تیار ہے. اگلے سیزن سے یہ سارے چیز ہم بچوں کے لیے چھوڑ چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس ایریا میں جو ہے ایک پروٹیکشن وال کی بہت اچھا ضرورت ہم محسوس کر رہے تھے، جن کا فوری طور پر ہمارے کوآرڈینیٹر شبیر صاحب نے اس چیز کا منظوری دیتے ہوئے سماگرا کے اندر یہاں پہ ایک پروٹیکشن کم ایک کمپاؤنڈ والی کا نرمان کیا ہے، جو کہ یہ پتھر کو بچانے میں کافی اس کا مدد رہے گا، جس کا ہم نے اندر سٹیلنگ کر کے بالکل یعنی کہ بالکل مضبوط اس کو بنایا ہے، جو آگے بچوں کی صحیح ہے. ہمارے زور کا جو لیڈر ہے ایجوکیشن آفیسر صاحبہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی، جس کا آپ کا ہم نظر چاہتے ہیں کہ ہم ہائی اسکول ہونے کے ناطے ہم ایک انٹیگریٹڈ لیب کی یہاں پہ ضرورت سمجھ رہے ہیں، جو کہ 9th اور 10th کے لیے ایک انٹیگریٹڈ سائنس والے کے ہوئے ایک ICT لیب کا بہت اچھا ہم یہاں ضرورت فیل کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک آرٹ اینڈ کرافٹ کی ایک روم کا بہت ہی یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک لائبریری کی یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے. ملا کے نیکسٹ سیزن میں جو اندر یہ سارے ریکوائرمنٹ ہم نے پورا کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں سماگرا میں بھی کچھ اپنی بیریکیڈشن ہوتا ہے، کچھ اپنی یعنی کہ نارمس ہوتا ہے، کنٹینیویشن میں بھی تھوڑا ہمیں کنٹینیوس فنڈنگ میں بھی ہمیں پرابلم ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس اسکول کے یعنی کہ کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کے لیے PM شری جیسے ایک اچھی راستہ بھی ہم فیل کر رہے ہیں. آپ جناب والا سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے تک اس کی ایک ریکمنڈیشن جائے. فنڈس کی جتنے بھی شارٹیج ہے وہ سارا ہم PM شری کے اندر پورا کر سکتے ہیں سر. اور اس اسکول کی ابھی کا جو 200 کا جو رول ہے، فردر یہ جو ہے ہم 9th اور 10th کو اگر ہم ایڈ کریں گے تو کم از کم آن این ایوریج اگر 30 بچے بھی اگر رکھیں گے، یہ 250 پلس کراس کرنے جا رہا ہے ایسے ہائی اسکول. تو یہاں پہ بہت ہی فنڈس کی اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ایک تیزی کے ساتھ یہاں پہ ہم ضرورت محسوس کر رہا ہے. آپ جناب والا جو کہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہے سماگرا کے اندر، اور میم صاحبہ سے بھی ایک ریکمنڈیشن تھی، آپ سے التجا ہے کہ اس اسکول کو جلد سے جلد PM شری کے اندر لیا جائے. اور تمام پیرنٹس کی طرف سے
میں خود کو ایک نمائندہ بنا کر آپ ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ فرام دا ویری بگننگ آپ لوگوں نے بالکل ہر لمحے پہ ہر پوائنٹ پہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے. ہمارے بچوں کی ٹیچنگ فیکلٹیز سے لے کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے آپ نے اپنی ہی اس میں لیول میں بیٹھ کے جتنا بھی ہو سکے آپ لوگوں نے شکریہ کرتا ہوں. آپ لوگوں نے کوشش کیا ہے, اپنے حساب سے یہ چیز مدد کیا ہے. میں تمام کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ تمام کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے رخصت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ مختار سر. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پروگرام ہے کلاس فرسٹ کے اسٹوڈنٹ سے. تو وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے, ایک بیوٹیفل رائم جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ لوگ سستی مت کریں پلیز, ان کی انکریجمنٹ کے لیے حوصلہ افزائی کریں, تالیاں بجاتے رہیں پلیز. کلاس فرسٹ اسٹوڈنٹ. شہزاد for reciting a beautiful night. گونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسول مکہ مدنی. گونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا, اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں, محبوب خدا کا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی. کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسول. او صاف تو سپنے پائے ہیں, او صاف تو سپنے پائے ہیں, پر اس میں سراپا کوئی نہیں, پر اس میں سراپا کوئی نہیں. آدم سے جنا ہے عیسیٰ تک, آدم سے جنا ہے عیسیٰ تک, سرکار کے جیسا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی. کونین میں تم سا کوئی نہیں. یہ شان تمہاری ہے آقا, یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بنی پر پہنچے ہو, تم عرش بنی پر پہنچے ہو. شان نبی ہے سب لیکن شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں. آج کا ہمارا جو سیکنڈ پوزیشن کا جو پرائز ڈسٹریبیوشن ہونے جا رہا ہے. So for this I would like to invite our special guest Mr. Shabbir sir, please on the stage, and Ma'am Shamma, please come on the stage for the prize distribution for second position from class. Second position, any guesses? آپ لوگ کچھ گیس کرنا چاہتے ہو کون ہو سکتا ہے کلاس سیکنڈ میں؟ کلاس فرسٹ میں سیکنڈ پوزیشن is سرفراز علی with 98.8%. سرفراز علی. Welcome سرفراز.
तालियों की कमी ना करिए प्लीज आप लोगों से. From class second position goes to any guesses? Class second में कौन आ सकता है? हैं? आदिर. From class second position Suhail Abbas with 97.2%. Suhail Abbas. From class second position is Riza Ali with 98.8%. Riza Ali. Class second position goes to Chocho Fatima Zara. Oh, congratulations Chocho. From class second position goes to student Taiba Fatima Taiba. Well done. From class 6 second position. Any guesses? Class 6 lesson? And second position is Fatima Mehbish with 96.6%. Shabbat Mehbish. Well done. From class 7 second position goes to Masuma Nazdin with 93.5%. Masuma Nazdin. Masuma Nazdin parents हैं तो please congratulations. तालियों की कमी नहीं होना चाहिए please. Mansura Bano. Mansura Bano. Congratulations Mansura Bano और Mansura Bano के parents को. Thank you so much, sir.
After this, I would like to invite Education Officer Kargil, Madam Nargis Banu Sahiba, Headmaster Model High School, Yathang, Haji Gulzar Sahab, हमारे मॉडल हाई स्कूल यथन के स्टाफ मेंबर्स, विलेज एजुकेशन कमेटी के मेंबरान, इस स्कूल में ज़ेर तरबियत हमारे बच्चों के वालिदैन और सरपरस्त और अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम और जुले। मैं सबसे पहले आप लोगों का, आपके वीसी मेंबर्स का और आपके स्टाफ मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस स्कूल में एज स्पेशल गेस्ट आपके एनुअल डे प्रोग्राम में शमूलियत करने का मौका दिया। इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही सबसे पहले मैं एज कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि एक दीवाना मांग थी आपके वीसी मेंबर्स का कि आपका स्कूल समग्र शिक्षा के अंदर अपग्रेड होके एक हाई स्कूल बने, और इनकी जो डिमांड थी उससे हमने प्रपोज किया था। तो हम शुक्रगुजार हैं अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर का, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का, जोनल एजुकेशन ऑफिसर का, जिन्होंने फिजिबिलिटी वगैरह हमें बना के इस प्रोजेक्ट करने के लिए इनकी रिकमेंडेशन थी, और साथ में हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का, कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कि इस साल के प्लान में जो 4 स्कूल अपग्रेड होकर हाई स्कूल बन के आए थे उसमें आपका स्कूल भी बना। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक मल्टीपोलर प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे पोल्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। की पेरेंट्स स्कूल अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, तो वहाँ पे सिर्फ 2 पोल रहता है, एक नतीफूल चिकवाती टीचर्स है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सब रिसर्च और रिसर्च ने ये कहा है कि एजुकेशन एक मल्टीपोलर प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे पोल्स को इकट्ठा होकर काम करने की ज़रूरत है। जब तक हम सब एक होकर काम नहीं करेंगे तब तक हम इन बच्चों को वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जो आज का वक्त, आज का ज़माना जो है, इस कंपटीशन का दौर जो है वो इनसे तकाजा कर रहा है। एजुकेशन स्कूल के हिस्ट्री का यहाँ पे हमारे मुख्तार साहब ने जिक्र किया, और हम सब जानते हैं 2016 से इन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया है। उससे पहले हम जानते थे यहाँ 4-5 बच्चे थे और 1-2 टीचर्स थे। स्कूल जो है 1-2 साल के अंदर ही बंद होने के डगर पे था, और ऐसे वक्त में इन्होंने पता नहीं कैसे इंस्पायर होकर इन्होंने काम किया था। इन्होंने मेहनत करके इस स्कूल पे काम किया, इसका ओनरशिप ले लिया, और इस पे इतनी मेहनत इन्होंने किया, दिन रात स्कूल टाइम देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है, लेकिन सब मेहनत में शुक्रगुजार शुक्रिया अदा बारगोशन की दिए सब मेहनत बस है स्कूल में दिए सब लाज बस, और एक हमारे आज यूटी लेवल में दिखाने का एक मॉडल स्कूल के तौर पे इस स्कूल को चमका दिया। उसके हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे हैं, इसका मिसाल में एक इसके तौर पर देना चाहता हूँ। कहता है एक बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट कहता है, ए मैन इज ए माइंड फुल ऑफ जर्म्स। इंसान जो है वो एक कान है जो बिल्कुल हीरे जवाहिरात से भरी हुई है, लेकिन जो हीरा जवाहिरात जो है वो हर किसी को नजर नहीं आता है। उसी तरह हमारे बच्चे भी एक कान है जो हीरे जवाहिरात से भरी हुई है। इसके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें एक्सपोजर देने की ज़रूरत है, स्टिमुलेशन देने की ज़रूरत है, और इस दिशा में आपके टीचर्स और आपके वीसीज जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा है। इसके लिए मैं इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये हमारे पास आते रहते हैं, और हमने भी इतनी तावन दिया है, जितना हमसे सपोर्ट हो सकता है हमने कोशिश किया है, और आइंदा भी मैं यकीन दहानी करता हूँ कि जब भी किसी किस्म का आपका सपोर्ट की ज़रूरत पड़े हम आपकी सपोर्ट के लिए तैयार हैं। बुद्धिक टीचर का आपका डिमांड था, डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं है जहाँ बुद्धिस्ट एरिया से उन स्कूलों में है, लेकिन आपके स्कूलों में हमने बुद्धिक टीचर प्रोवाइड किया है। हिंदी टीचर का डिमांड था, वो हमने प्रोवाइड किया है।
अपग्रेडेड हाई स्कूल में जो स्टाफ आते हैं, हालांकि इसके साथ दूसरे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे अभी तक स्टाफ नहीं, सारा स्टाफ भी प्रोवाइड किया है। अब हम सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। मातस नतीब खून चाहता हूँ सिद्धि का दुख मरुपा यूँ से थोड़ा इनसे पूछने की ज़रूरत है, इनके साथ थोड़ा सा ताउन देने की ज़रूरत है। ये लोग जो काम करते हैं उन्हें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। शिक्षा के अंदर हमने कोई कमी इस स्कूल में नहीं रखा है। जैसे बाउंड्री वॉल और 2 एडिशनल क्लासरूम इसी साल हमने प्रपोज करके लाया था, प्रोजेक्ट करके, वो हमने दे दिया है। इस साल आपका ICT लैब और साइंस का जो लैब है, इंशाल्लाह हम आने वाला जनवरी का जो प्लान है उसमें हम प्रपोज करके ला के देने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। लास्ट में फिर से एक बार आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्पेशल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है। इसे ब्रीफ करना चाहता हूँ मैम। इस साल हमारे स्कूल में एजुकेट टीचर्स और टीचर्स ने मिलकर एक मीटिंग किया था कि हमारे स्कूल में अपर विंग और लोअर विंग जो है क्रिएट किया जाए और हर विंग में टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इसके बेसिस पे और क्लास सेक्शंस भी खोला था ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन पे ज्यादा केयर हो सके, उनको अच्छे से पढ़ा सके। तो इसी के बेसिस पे हमने लास्ट में हमने जब रिजल्ट देखा तो हमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। उसी के बेसिस पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेक्शन जैसे कि जिसको हम जो वीक सेक्शन थे, उन्होंने बच्चों ने बहुत मेहनत किया और उनमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया था। तो उनके लिए हमने कुछ स्पेशल प्राइजेस रखे हैं। तो फर्स्ट है फ्रॉम प्राइमरी सेक्शन, बेस्ट परफॉर्मेंस है उम्मुल बनीन क्लास 4 उम्मुल बनीन। नेक्स्ट है स्टूडेंट जो है लोअर सेक्शन में से है बेस्ट स्टोरी टेलर जो है शेरिस फातिमा क्लास 3 में से। शेरिस फातिमा इतने अच्छे स्टोरी सुनाते हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू में, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। कांग्रेचुलेशन शेरिस फातिमा। इसके बाद है लोअर सेक्शन में से बेस्ट रीडर जो है स्टूडेंट है जुल्फिकार अली, क्लास है फर्स्ट है। इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट मैम, रीडिंग में अच्छा करता है, स्पेलिंग भी अच्छा करता है, बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। ये जो जुल्फिकार जो कोई भी इनको सब्जेक्ट देते, चाहे वो इंग्लिश हो, SST हो या कोई नॉवल भी दिया जाता है, न्यूज़पेपर भी दिया जाता है, हिंदी हो, सब कुछ बहुत अच्छे से रीड करता है। तो रीडिंग जो स्किल है इनका बहुत ही बेस्ट। नेक्स्ट जो है बेस्ट TLM अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो हम स्कूल में जो TLM जो टीचिंग लर्निंग मेथड जो मटेरियल्स होते हैं उनको यूज करते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है वो बहुत इंटरेस्ट के साथ और बहुत अच्छे से उन TLMs के जरिए अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करता है, स्पेशली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। वो है क्लास 3rd से रूहुल्ला। ओके, नेक्स्ट हमारे एक स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो उसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कोई भी यहाँ पे विजिटर आता है या कोई ऑफिशियल आता है वो बगैर झिझक के कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे जवाब गलत भी होता है लेकिन वो जवाब देता है, आंसर देता है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। उसका नाम है मुंतजिर फ्रॉम क्लास 2nd। चलो तालियों की कमी नहीं हो जाए प्लीज। क्लास में जो है बहुत ही एक्टिव, बहुत सब हर कोई रहता है, बहुत कुछ न कुछ मल्टी टैलेंटेड है क्लास फर्स्ट के बच्चे सब, हर चीज में ये लोग बहुत आगे हैं। शाबाश शाबाश ताली।
तालियों की कमी नहीं हो जाए, प्लीज प्लीज तालियां बजाए। اس کے بعد جو ہے کچھ پرائز جو ہے وہ ہمارے اسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے یا ڈسپلن سے ریلیٹڈ ہے. سو اس کے لیے میں ہمارے یہاں پہ موسٹ ٹیلنٹڈ موسٹ ہارڈ ورکنگ ہمارے جو فزیکل ٹیچر ہے مدثر سر کو اسٹیج پہ بلانا چاہتا ہوں پلیز پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے. اور ہمیں اسٹوڈنٹ آف دا اسکول موسٹ ڈسپلن اسٹوڈنٹ آف دا اسکول گوز ٹو ساجدہ بطول فرام کلاس 8. ساجدہ بطول ہے تو پلیز آ جائیے. اوکے ساجدہ پلیز ویٹ. اچھا ہمارے جو موسٹ ڈسپلن اسٹوڈنٹ کو شاہین بک ڈپورٹ کی طرف سے بھی ایک گفٹ پیک ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے ہمارے موسٹ کلینس بوائے جو ہے اسکول کا وہ ہے ریحان فرام کلاس فرسٹ موسٹ کلینس اسٹوڈنٹ آف دا اسکول. اچھا اور اس کا گرل جو ہے موسٹ کلینس گرل جو ہے ریحانہ فرام کلاس سیکنڈ ریحانہ. اور ان کلینس اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارے جو گلشن اسٹیشنری سے بھی کچھ گفٹ ہمیں ملا ہے. تھینک یو سو مچ گلشن اسٹیشنری. تعلیم کی کمی نہیں ہے تو پلیز آپ لوگوں کو چاہے کہ مل گیا آپ تو تھوڑا انرجی بتائیے پلیز. اوکے نیکسٹ جو ہے ہمارا اسپیشل جو پرائز ہے وہ ہے اسپورٹس کو لے کر. جیسے کہ ہم نے مینشن کیا کہ ہمارے اسکول جو ہے ایجوکیشن کے علاوہ اسپورٹس میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے. چاہے وہ ہینڈ بال ہو, ٹیبل ٹینس ہو, ایتھلیٹ ہو, رننگ ہو, والی بال ہو, ہمارے اسکول میں ہر جگہ پارٹیسپیشن کرتے ہیں اور ہمیشہ پوزیشن ہولڈ کرتا ہے. تو اسی بیسس پہ ہم اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ کو اسپورٹس پرسن آف دا ایئر جو ٹائٹل دیا ہے. تو یہ جو اسپورٹس پرسن آف دا ایئر گوز ٹو مقصومہ فرام کلاس 8. مقصومہ فرام کلاس 8. انہوں نے یہ پڑھنے میں بھی بہت زیادہ ایکسل ہے میم. اور اس کے ساتھ ساتھ مقصومہ نے اسپورٹس میں بھی چاہے وہ ٹیبل ٹینس ہو, ایتھلیٹس میں بہت زیادہ پارٹیسپیشن کیا تھا. 2 ٹائم جو ہے اسٹیٹ لیول کے لیے سلیکٹ بھی ہوا تھا. انفارچونیٹلی مڈل اسکول کے ہونے کی وجہ سے اسٹیٹ لیول پہ زیادہ جو ہے ہمیں پارٹیسپیشن کا وہ اپارچونیٹی نہیں ملتا ہے. تھینک یو سو مچ مدثر سر. اچھا اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ آن دا اسٹیج دا گروپ جو پرفارم کریں گے یہاں.
बढ़िया बढ़िया शाबाश value do chao mata vista mere pata chabino yanu committee una team una chi una koi gomas skuli tarif chi mene koi burai mana ba minu chana skul yala din zu bas ya yanta diao ni directly teacher yala do मैं बोली thank you now it's time to have our chief guest on the stage. तो इसके बाद हम कि वो यहाँ पे स्टेज पे आए, लीडर्स पे आए और अपने ख्याल पेश करें. BC members, dear parents और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले मैं हेडमास्टर साहब का और BC members ग्रांट्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज के प्रोग्राम में एनुअल डे और रिजल्ट डे पे इनवाइट करके आप लोगों से मिलने का मौका दिया. बहुत बहुत शुक्रिया. और साथ में आप लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपका स्कूल मिडिल स्कूल से अपग्रेड होके अब हाई स्कूल बन गया है. तो बहुत बहुत मुबारकबाद. इसका सहरा जो है ज़्यादातर आपके VCs के ऊपर जाता है. एजुकेशन डिपार्टमेंट का तो है ही, लेकिन उनकी मेहनत, मशक्क़त और काविशों की वजह से आपका स्कूल आज इस मुकाम पर पहुंचा है. और साथ में आपके स्कूल का इनरोलमेंट भी मैं समझती हूँ कि एक तो आपके टीचर साहिबान और VC मेंबर्स का अहम रोल रहा है स्कूल को अपग्रेड होने में और एनरोलमेंट जो है एनहेंस होने में. तो आप पेरेंट्स का और हम सब का इनका बहुत बहुत मशकूर होना चाहिए. जैसे कि हम सब जानते हैं, एजुकेशन ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके ज़रिए हम एक तो सोसाइटी में एक आला दर्जे का मुकाम हासिल कर सकते हैं और अच्छी तरीके से अपने कौम को आगे ले जा सकते हैं. तालीम जो है एक नूर है, यानी जैसे कि हमारे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने तालीम को नूर के साथ तशबीह दिया है. तो जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, आप एक अच्छा शहरी नहीं बन सकते हैं. बाकी आपके स्कूल में जितनी भी डेवलपमेंट्स है, जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, coming together is beginning, working together is progress, and keeping together is progress, and working together is success. तो ये सब कुछ एक तो VC मेंबर्स, दूसरे आप पेरेंट्स और तीसरा टीचर्स और बच्चों की भरपूर मुकम्मल आप लोगों की एक यूनिटी की वजह से, कोशिशों की वजह से आपका स्कूल इस मुकाम पर पहुंचा है, जिससे हमें भी बहुत फख्र महसूस होती है. जब भी हम किसी स्कूल के फंक्शन में जाते हैं तो हम फख्र के साथ आपके स्कूल को एक मिसाल के तौर पर आप लोग उन जगहों पर उन बच्चों के सामने, उन टीचर्स के सामने में फख्र समझकर आपके स्कूल को इतनी तारीफ करती हूँ कि देखो, अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता है हमसे. बहुत सारे स्कूल जो है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिफंक्ट हो गए हैं, यानी वहाँ पर स्कूल जो है वहाँ का इनरोलमेंट ख़त्म हो गया और बिल्कुल वो स्कूल जो है ख़त्म हो गया है. अब इसका अंदाज़ा खमियाजा जो है अभी आप लोगों को पता नहीं चलेगा और 4-10 सालों के बाद पता चलेगा उन लोगों को जिन इलाकों में, जिन यानी गाँवों में जो स्कूल डिफंक्ट हो गए हैं, उनको तब एहसास होगा 2 और 5-10 साल के बाद. तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि
इस स्कूल में एक तो आपका एनरोलमेंट जो है हमारे जून में तकरीबन जितने भी मिडिल स्कूल्स है या हाई स्कूल्स है उनसे ज़्यादा है, शायद 180 अभी आप लोगों के टीचर साहिबान ने बताया, तकरीबन 202+ भी क्रॉस कर रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारक। और हमेशा आज ये नहीं कि हम चाहते हैं चलो हमारा स्कूल ने तरक्की कर लिया, एनरोलमेंट बढ़ा, तो आपका कोशिश जो है अब स्टार्ट होता है। इससे आगे भी आप लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे एफएलएन में, जैसे NEP 2020 में हमारे एजुकेशन में ये बताया गया है कि बाल वाटिका से लेकर 3rd प्राइमरी तक बच्चों को कम से कम रीडिंग राइटिंग और उनको रिकॉग्नाइजेशन जो है अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर उनको ये 3rd प्राइमरी तक ये सब कुछ समझ में आ गया तो आगे चलकर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आगे चलकर ये बच्चे जब 12th में पहुंचेंगे या मैट्रिक में पहुंचेंगे, वहाँ पर उनको अपना स्ट्रीम्स, जिस स्ट्रीम्स में इंसला जारी रखें। बाकी आप लोगों का डिमांड कुछ भी हो, आप लोगों को यहाँ पर डिमांड रखने की जरूरत ही नहीं है। आपके VC साहिबान इतने यानी होशियार है, इतने जाते हैं। मास्टर साहब से बात करेंगे, हम लोग मिलकर इस पर काम करेंगे। बाकी शफीक साहब ने बताया आप लोगों को जैसे ICT लैब का, वोकेशनल क्लासरूम का, लाइब्रेरी का, तो ये सब कुछ आपके फिजिबिलिटी के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब आपके पास इतना ज्यादा रोल होगा तो ये गवर्नमेंट खुद दे देंगे आप लोगों को। इसकी कोई आप लोग ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से इस साल आप लोगों का स्कूल अपग्रेड हो गया, इसके साथ ही आप लोगों को सामग्रा ने टीचर्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो ये सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। तो इसके साथ में आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ स्टाफ मेंबर्स का, VCs का, पेरेंट्स का, खासकर फीमेल पेरेंट्स का। देखो ये कितनी उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं, अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। और बच्चों से ये मैं कहना चाहती हूँ कि आज का रिजल्ट डे है, तो आप लोग सब इस रिजल्ट में कामयाब हो गए हैं। आपका पूरे साल का आपका मेहनत, आप लोगों को आज मेहनत का पता चला है। जिस तरीके से कोई फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यानी आए हैं, तो चाहे नहीं आया हो तो इसकी चिंता नहीं करें। हाँ, इतना जरूर ख्याल में रखें कि आपका कंपटीटर कौन है। जैसे 3rd क्वेश्चन जिस बच्चे ने लिया, जो बच्चा पास हो गया, आपका कंपटीटर कौन है, आपके आगे कौन है। अगर ये आप लोग अपने ख्याल में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग आगे कोशिश करेंगे कि इस बच्चे तक मैं कैसे पहुंचूं, यानी जितना नंबर जिस बच्चे ने यानी आपसे ज्यादा लिया है उसको कैसे मैं गेन करूं, तो उस पर ज्यादा फोकस करें, तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो कोशिश जारी रखना। मैं इसी दुआ के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला हम बच्चों को पढ़ने की, लिखने की यानी तौफीक बख्शे, और पेरेंट्स और VCs और टीचर्स को अपने बच्चों को आगे ले जाने में मदद करने की, इनको गाइड करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे इस प्रोग्राम का आखिरी जो है स्टेज आने वाला है। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज आवर हेडमास्टर, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड प्रेजेंट द वर्ड ऑफ थैंक्स। Respected our chief guest, Zonal Education Officer Kargil, Ma'am Nargisli, guest of honor Shabir Sir, Coordinator Smartra Kargil, C Office Kargil, VC Chairman Kapas, respected parents, dear students, VC members, my dear colleagues, Saga Assalamu Alaikum. Sapazasnala ni pura students gamma dona parents ki
कि पेरेंट्स साहब आपके बच्चे लास्ट ईयर जिस क्लास में थे उससे प्रमोट होकर नेक्स्ट हायर क्लास में आ गए और स्टूडेंट्स साहब यंता एंती पूरा सीजन पे नु मेहनत पर से कंपटीशन को दी चीज़ को देता ना वैसे भी उन्हें शुरू का मॉर्निंग असेंबली का ज़रूरत एक वक्त चौंचिन टाइम चौंचिन की डीलिंग दी टाइम पे मिल गाँव यरी क्लास पे ना यरी क्लास मेट जिगिस फर्स्ट खेरबत होंचिन सेकंड खेरबत होंचिन थर्ड खेरबत होंचिन दिगा इनाम लेन मत होंचिन फोटोग्राफी चाहता होंचिन शायद तो तना यरा मायूस छुप गए और तेज आपको दिनी यूं सिंमिन की आपके यरम नहीं हम वो देना क्लास पे दुख से वो आपसे बाजी ले गए कहने हो चमें सगा थाड़े हो चमें लेकिन कांग्रेचुलेशन मुबारक निश्चित सी दसा नतालिका तमाम गेस्ट गंगमस कि नतांगा दी स्कूल पो हाई स्कूल सो ड्रिंग छपा नता मिडिल स्कूल युपिन ड्रिंग छपा नती नची खासकर नची मींस हम स्टाफ और वीसीस कोई नचन ड्रिंग छपा बोश के कंपटीशन चलपिन की पूरे करगिल नो मिडिल स्कूल का छाए सो जुपी करगिल का टॉप मिडिल स्कूल बन के रहना है जब इंसान ला कामयाबी थोप पनते का लांस दुख चस्प दो सब छोटी सी एक बार ड्रिंग फर्स्ट होना सेकंड होना अगले बार नहीं आया तो वो कंसिस्टेंसी मलूस पा जन्ना जिस पर नचा की स्कूल पर एक बार करगिली पूरे करगिली मॉडल मेडल स्कूल व्यथा जरे 2600 सहयोग पर वाला दे चीज से दे कंपटीशन पे नो मचा दुप फिला पूरा टीचर्स पूरा स्टूडेंट्स और विशेष सख्त मेहनत पे लेकिन दीचिक ना फला दी शोल्डर पे का एक जिम्मेदारी ये आ गया कि अब हमको हाई स्कूल नमो कंपटीशन बचा माशाल्लाह से दिचिक नती 9th हाई स्कूल की शुरुआत पे 9th पहला फर्स्ट एडमिशन होने जा रहे हैं हो भी रहे प्रोसेस हमारे चल रहे हैं अच्छा फर्स्ट तगती सोमान मना सम से फिर भी नोटिस सीखता हूँ फिर हमारे पास वैसे भी 8 क्लास में 15 बच्चे हैं तो यही काफ़ी था हमारे लिए लेकिन फिर भी जैसे एडवर्टाइज करते ही अब तक मैं 9th क्लास के लिए 10 से 15 एडमिशन के फॉर्म्स सप्लाई कर चुका हूँ छाना जो तमें में तो पेरेंट्स ने सोच पे नो जो यूं से तो कि जो सिर्फ मिडिल स्कूल तक पे लिमिट में पेन तो को हाथ पो को हदूद पो को प्रोज पो हायर अंकों जन्ना कंसिस्टेंसी मशीन सबसे इतना एडमिशन के लिए रश हो रहे हैं छाना तो मचा था फिया ना तो सगफिया फख्र इस करेंगे बाकी स्कूली अचीवमेंट्स देना अचीवमेंट्स बाकी स्पिरिट बुली खरंतना सागवासनला शबीर सला थैंक यू सो मच कि नता दक्सा नता हाई स्कूल गुंदे आता जैसे कि अपग्रेड सो स्कूल मंगो लेकिन मंगो स्कूल मंगो अपग्रेड सो से तो कहां दुख सुख तो मतलब अपग्रेड सो हला सम से उसके बाद फिर थोड़ा आयम प्रोसीजर ची खची को मत कोई डॉक्यूमेंट देना होता है तब जाके 2 एफलेट सो से उसमें फिर पैसा वगैरह फंड आना शुरू हो जाता है लेकिन नती विजुअल क्लैपिंग बजे सागवासनला मना कि कोई सारी यूं मेहनत बस जैसे ही अपग्रेड ऑर्डर पर यूं बना उसी दिन से चलना शुरू कर दिया और बिल्कुल 10 दिन के अंदर स्कूल का हाई स्कूल स्टाफ के होता एफिलिएशन के बाद स्टाफ ला कर दिया स्कूल ला हाई स्कूल फंड्स के उनचास को जो छो अचीवमेंट तक्सा मची स्कूल नंबर एफिलिएशन से कहीं बाकी स्कूल मचा फोन दो वो से एफिलिएट बस अभी उनको पता नहीं हमारा एफिलिएशन होकर फंड भी आने शुरू हो गए छाना नती जो एक जिंदा दिली और सिर्फ तंता क्रिटिसाइज तो नहीं है लेकिन बोलना मैं तुझे नुपा की बाकी जगहों में शायद विशेष होंगे लेकिन ऐसे विशेष शायद कहीं नहीं होगा छाना जैसे मुझे स्टाफ आ गया 5-6 हाई स्कूल स्टाफ मेरे पास वैसे भी 8-10-12 सौ स्टाफ फिर हाई स्कूल किया 2 सेक्शन में सेक्शन ए बी क्लास में हमारा ताकत से जो मैं दिचक से मैंने वहाँ मौका मिलते ना अगले साल शायद ये मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी मजबूरी है कि तब मुझे इतने सरप्लस स्टाफ नहीं होंगे जैसे 2 छा नहीं हम वो मैंने क्लास में फूल होता डिवाइड बस क्लास में होता टीचर ला पता है कि क्लास में कौन बच्चे ज्यादा अच्छे हैं कौन बच्चे ज्यादा होशियार है कौन बच्चे थोड़ा कमजोर है कमजोर इन द सेंस कि ये नहीं है कि कौन बड़ी छुप को बड़ी गोरचार है या अच्छा बड़ी गोरचार है ना क्लास से हम स्टूडेंट गमा बराबर में होते उस हिसाब से हमने डिवाइड करके क्लास का 4 मीज बस
सेक्शन ए ना बी से हमारे पास इधर कंस्ट्रक्शन चल रहे थे क्लासरूम जिसकी दिया बिजी सो इसके बावजूद पूरा रोड लर्नर निकल अच्छा लास्ट में मौका तो गाँव लोग यंगोरी छुट पर पिन कम भी छुट पर पिन दो निकल लास्ट में अच्छा मौका तो और मिस्री से गाँव ठीक छुट पर पिन दोनों दो बस डबल कॉर्ड लास्ट बार मौका तो चलो एक तीर से दो शिकार ना देगा सो शायद उससे फायदा तो बहुत हुआ स्टूडेंट को बहुत उन्होंने प्रोग्रेस किया लास्ट भाई चीज़ों से बना दे गौ स्लो लर्नर ये खान पोना और न बराबर करे चाहे जो मती अचीवमेंट ची बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट अतना टीचर अलास हर सैटरडे क्लास है नतांगा इसके अलावा सुखोनु लेकिन ये ऐसा स्कूल गाँव में खनता अलग गाँव ड्रामे में इंटरेस्ट खन को स्टेज परफॉर्म बुक सम खन देख कैपेबिलिटी वो खन थ्रू दो होशियार खनता की काम कर रहे हैं और आइंदा नेक्स्ट एकेडमिक सेशन पर सारे स्पराव ने यहाँ पेरेंट्स सारे जगह स्पराव तो तमाम पेरेंट्स स्पराव इंशाना उन सब को दिरियंतेस नचीफ या टाइम टीचर्स को उजुस निम्ना सरिंग मजरत खासकर विशिंसला 1 सेकंड चेयर बन की डेकोरेशन गंगा गुंदे संडे पूरा खंता दो जस्मिन चाल यंता फेरचिक मिने गत योम मोके मत दिया यंता मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले में उमर बशिन यंते फूल नदी का इनाम आयोपिन यंते फूल क्लास वाइज क्लास फर्स्ट जो है फर्स्ट पोजीशन जो है एनी गेसेस आप लोगों को कुछ गेस है कौन आ सकते हैं क्लास फर्स्ट में से कौन क्लास फर्स्ट है सभी का ज़रा 99.5%। हमारा दूसरा लोग क्लास पुलिस तालियों बजाय पुलिस तालियों से कांग्रेचुलेशन सभी का और हर पेरेंट्स। क्लास सेकंड में से फर्स्ट जो है कौन आ सकता है? कौन? ओके कादिर अली क्लास सेकंड में। अच्छा अब मैं इस बच्चे का परसेंटेज बोलने जा रहा हूँ 99.9% है सिर्फ एक पास कर रहा है और ये तो लड़का जो है ना पूरे स्कूल में बहुत इनोसेंट है बहुत इंटेलिजेंट है बहुत हार्ड वर्किंग है एंड क्लास थर्ड जो है फर्स्ट पोजीशन इस बार जो है सेरी सकीना क्लास फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम क्लास 99.5%। From class 4 first position any guesses? Yeah, about the Riyaz Azman with 96.1%. Class 6 से first position any guesses? Class 6 में से कौन आ सकता है? कौन आ सकता है? क्लास 6 में से फर्स्ट पोजीशन उस लड़की को दिया जो थोड़ा सा मिस्चीवियस है थोड़ा सा बदमाश है लेकिन पढ़ने में हर चीज में बहुत बढ़िया है जाफर अली 97.4%। जाफर अली बोल दूंगा जाफर अली कांग्रेचुलेशन। ओके क्लास 5 में से फर्स्ट पोजीशन एनी गेसेस? क्लास 5 शहजाद अली तमन्ना 98.4%। शहजाद another brilliant student। Congratulations Shahzad and parents। Okay, from class 7 first position goes to any guesses? Class position Mohammed Taqi with 93.8%। Mohammed Taqi first position goes to Nasreen Fatima with 83.8%। Nasreen Fatima class 8 में से। पेरेंट्स
سے جو ہے اسکول ٹاپر ہے کون آ سکتا ہے پرائمری میں سے؟ کون؟ یہ ہے قاطب علی سے 99.8% کے ساتھ. قاطب علی پرائمری میں سے ٹاپر آف دا اسکول ٹاپر پرائمری سیکشن, سب پرائمری سیکشن. ویل ڈن قادر. اور میڈل سیکشن میں سے اینی گیسز کون آ سکتا ہے؟ میڈل سیکشن میں سے ہے جعفر علی 97.41%. اچھا تو ایک ایوارڈ ہمارے پرائز ہے موسٹ پنکچوئل اسٹوڈنٹ آف دی ایئر, جو ہر ریگولر کلاس میں اٹینڈ کرتا ہے, جس کا اٹینڈنس سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو موسٹ پنکچوئل اسٹوڈنٹ آف دا اسکول اس سال دیتا ہے ربابہ بطول فرام کلاس تھا 99.2% جو ہے اٹینڈنس ہے. ویل ڈن ربابہ, گڈ. رباب اچھا, اب اس کے بعد جو ہے پورے ہوپ اسکول میں سے ایک اسٹوڈنٹ کو ہم نے اسٹوڈنٹ آف دا ایئر جو ہے سلیکٹ کیا ہے. اینی کیسز کون ہو سکتے ہیں؟ کون ہو سکتا ہے؟ بس بولو. تو یہ سب سے الگ میرے پاس 18 ٹیچنگ سٹاف ہے, نان ٹیچنگ سر مدثر بھی ہے. وہ تو الگ ٹیچرز, 18 ٹیچرز میں سے ون آف اینڈ موسٹ یونیک پرسنالٹی. ان کو اناؤنس کرنے کے لیے میں میم کے ہاتھ The Special Teacher of the Year award goes to Miss Konchok Dolma. parents is inam staff please cash prize ka Hasan Tamanna में भी कलेक्शन मालिक छाना जो जाना है तो वही है कंसिस्टेंसी. Congratulations ma'am. The most punctual teacher award goes to Mr. Mukhtar Ali Laki. प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चल रहे थे, तो मैं हेडमास्टर और चेयरमैन विलेज एजुकेशन कमेटी दोनों से गुजारिश करता हूं कि हमारे आज के मेहमानों को कुछ मोमेंटों से नवाजेंगे, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे बच्चों के साथ इस दिन को मनाने के लिए, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ आए हैं. उससे पहले एक यहाँ पे तमाम जो आज के प्रोग्राम में परफॉर्मर्स थे उनको करते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल का वो मेंटर है. बेसिकली ये मिस्टर गुलजार दानिश है, जो कि स्कूल का मेंटर है. 2016 में एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू हमें आगाह करने वाले बंदे वही हैं, जिसने समझ रहा कि इस सारे स्कीमों का, इस सारे बेनिफिट को इस स्कूल तक पहुंचाने का एक जरिया हम मानते हैं उसको. एक मेंटर है स्कूल का, जिनकी गैर हाजिरी में मैं शब्बीर सर से गुजारिश करता हूं कि आप उनके मोमेंटो यहाँ से हेडमास्टर से आप ले लेंगे. शुक्रिया. तो आप हमारे गेस्ट से गुजारिश करता हूं कि हमारे प्रोग्राम यहाँ समाप्त होते हैं, तो आप लोग ऑफिस में